So now watch this. This is how we are living our life nowadays. When we sleep in the night, eyes are closed, we are breathing, so our lungs are working. These are the lungs. Our heart is pumping. There's some digestion going on in the stomach and some parts of the body. This is the stomach and this is the brain. So brain also relaxes a bit when we sleep, and then we wake up by the alarm, and then we rush to the school or college or wherever, to workplace, eat whatever junk we come across. Some many people, they skip their breakfast also, and then whatever we eat keeps on depositing in the arteries, and one day it is going to block our arteries. And then some, they start smoking also. This also destroys our arteries, make them rigid, blood pressure rises. Whatever junk food we eat, it may cause diabetes, high blood pressure, and eventually one day a person has a heart attack. So when you have a heart attack, sometimes you don't even get a chance to reach the hospital. So the heart may suddenly stop also. So you need to immediately be revived by CPR, and then we can give you some shock and we can revive your heart. So if you are lucky, your heart may be revived, and then we do angiography, then we tell you that you have severe blockage, maybe you need a stenting or surgery. And then those who are lucky, like after the bypass procedure, they go home and start the same lifestyle once again. And then your friends tell you, यार अब तो तेरा bypass हो गया, अब तो तू परांठे भी खा ले, स्मोकिंग भी कर ले, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. और उसके बाद क्या होगा? One day the person again has either dies because of heart attack or may have cancer. And today I'll tell you that there is a link between various lifestyle diseases. So if somebody has a risk of heart attack, at the same time risk of diabetes, high blood pressure and cancer also rises. So they are exposed to multiple risks. So then you reach your destination. Start talking about the heart. So everybody knows how many hearts do we have? One. Today I'll tell you one secret. Heart is the most smart organ of the body. It rests for more times than it works. So how is it possible? कोई बताएगा? Heart कब rest करता है? Maybe while sleeping. No, but heart isn't. So when it is pumping, it pumps, then take a rest and then pump. Very good. What is your name? Natrika. Mathlika. So everybody clap for Mathlika. You are from science or arts? Arts stream. आर्ट्स. और डबल क्लैप. अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पता है तो और भी अच्छी बात है. So when the heart beats during systole, it works, and when in diastole it fills, it rests. So diastole time is longer than systole. So if we have to make the heart rest more, our heart should beat faster or slower? Slower. So when there is a heart patient, we give them medication to slow down their heart rate. वो कहते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भगवान ने आपको धरती पे भेजने से पहले आपको धड़कने गिन के दी हैं. आपको गिन के धड़कने दे दी भगवान ने, है ना, कि आपने 1 करोड़ धड़कने जीनी है. अगर आपका हार्ट स्लोली स्लोली बीट करेगा तब आप ज्यादा साल जियोगे, या फास्ट फास्ट बीट करेगा तब ज्यादा साल जियोगे? स्लोली. आपका व्हाट इज योर नेम? मुस्कान. सो मुस्कान के लिए क्लैप करो सब. So we have to do activities which should slow down our heart so that it beats for a longer time. समझ गए? ठीक है. छोटी छोटी बातें बताऊंगा आज. उसको अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आई एम श्योर कि इवन आफ्टर 30, 40, 50 years you will never become my patient. So here you can see the
trend that WHO has said that India is the capital of coronary artery disease, मतलब हार्ट अटैक्स का कैपिटल इंडिया बन चुका है 2020 से, हार्ट फेलियर का भी कैपिटल बन चुका है, डायबिटीज का भी। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये ट्रेंड जो है ये मेन में इंक्रीज हो रहा है या फीमेल्स में? मेन में। हाउ मेनी से मैन? हाउ मेनी से फीमेल्स में इंक्रीज हो रहा है? हाउ मेनी से कि बोथ में हो रहा है? बोथ में। सो इट इज अ डिवाइडेड हाउस। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये मैन में भी हो रहा है और वुमेन में भी, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। बट हियर यू कैन सी दिस स्लाइड कि जो पिछले 2 डिकेड्स में इन यूएस they have been able to reduce the deaths because of heart attacks in men, but in females it is still high. तो जो लोग ये सोचते हैं कि फीमेल में हार्ट की डिजीज कम होती है, आई विल चेंज योर कंसेप्ट टुडे बिकॉज आई टेल यू सो मेनी थिंग्स व्हाट हैपन इन फीमेल एंड यू हैव टू बी अवेयर। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि फीमेल्स में हार्ट डिजीज कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट इंक्रीजिंग इन रूरल या इट इज इंक्रीजिंग इन अर्बन? अर्बन, सब लोग बोलते हैं अर्बन, बट इट इज इंक्रीजिंग इन रूरल ऑल्सो। कौन बताएगा मुझे कि कौन सी स्टेट में यंग में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होता है? कौन सी इंडिया की स्टेट में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं? हाँ ठीक है, बताओ। हाँ त्रिवेंद्रम इज नॉट अ स्टेट। केरला। सो केरला में सबसे ज्यादा होता है बट नॉट इन यंग, एल्डरली में। सो एवरीबडी क्लैप फॉर देम। बट आई एम आस्किंग इन यंग, यंग में किस में ज्यादा होता है? दिल्ली। एनीबडी एल्स? हाँ ठीक है। Sir, I'm from Punjab. Punjab. What is your name? Sir, Harmandeep. Sir, Harmandeep. You're from Punjab? Yes, sir. So are you proud of it? No, sir. So everybody clap for Harmandeep. So सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो होते हैं पंजाब में यंगस्टर्स में, ठीक है? सो इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है? वी हैव टू कंट्रोल इट। कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसमें अगर हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, दैट मीन्स कि वी आर नॉट अवेयर, ठीक है ना? अभी मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि व्हाई एज एन इंडियन वी शुड बी वरीड। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे को जो रिस्क है वो चाइनीज से 6 टाइम ज़्यादा है, अमेरिकन से 4 टाइम ज़्यादा है और जापानीज से 20 टाइम। दूसरी बात ये है कि जो इंडियंस हैं दे गेट द डिजीज अर्लियर और लेटर। वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अर्लियर होती है उनको डिजीज या लेटर होती है? अर्लियर। आपका क्या नाम है? Tarushi. हाँ? Tarushi. तारुषि। सो एवरीबडी क्लैप फॉर हर। लेकिन इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मतलब वी आर एट मोर रिस्क। और दूसरा जो हमारी डिजीज है इट इज़ मच वर्स। हमारी आर्टरीज में ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, ज़्यादा टाइट होती हैं, हमारी आर्टरीज वैसे भी छोटी होती हैं और उसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, दोबारा हार्ट अटैक का रिस्क भी ज़्यादा होता है और बहुत सारी बातें हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यंग लोगों को डेथ हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड? कोविड के बाद हार्ट अटैक की डेथ्स जो हैं वो बढ़ गई है या कम हो गई? बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ गई? 10.2% किस में बढ़ी है? Those patients who were affected by COVID. जो इफेक्टिव, कुछ होंगे जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, कुछ होते हैं घर पे इफेक्ट हुए और फिर दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ी। उनमें से किस में 10 टाइम्स है? नॉन हॉस्पिटलाइज। क्या नाम है आपका? गीतिका। गीतिका को प्राइज दे दो।
तो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी उनमें रिस्क इंक्रीज 10 टाइम्स। हाउ मेनी डेथ्स अकर इन द वर्ल्ड हर साल? 58 मिलियन। और उसमें से हार्ट अटैक से कितनी डेथ होती है? 20 मिलियन। सो रेशियो क्या हो गया? 1/3। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 100 या ज़्यादा? मोर देन 100। सो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 30% मतलब 33 स्टूडेंट्स को रिस्क है हार्ट अटैक से डेथ होने का। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी क्लास ध्यान से सुनोगे जैसे अभी तक सुनते आ रहे हो, आई एम श्योर 0% हो जाएगा ये। अब ये कि रिस्क फैक्टर क्या है? हमारा रिस्क फैक्टर एवरीबॉडी नोज कि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर है, हाई ब्लड प्रेशर, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी। तो इट हैज बीन सीन इन मैनी स्टडीज कि जिसको हार्ट डिजीज होती है उसमें से 23% स्मोकर हैं, 35% इनएक्टिव है, 42% जो है उनको ओबेसिटी है, 25% को डायबिटीज है। सिमिलरली कैंसर के पेशेंट को दे हैव सिमिलर रिस्क फैक्टर एंड डायबिटीज के पेशेंट को सिमिलर। क्या है ये? कौन करता है ऐसा? हाँ? क्या बोलते हैं इसको जो अपने आसपास जाला बुनते हैं? हाँ जी, आप बताओ। स्पाइडर। यस, वेरी गुड। तो स्पाइडर अपने आसपास वेब बनाता है, उसी में ट्रैप हो जाता है। तो सिमिलरली आफ्टर बर्थ वी स्टार्ट वीविंग द वेब अराउंड अस, है ना? हम ही अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं ना, और एक दिन हम उसी में ट्रैप हो जाते हैं। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? ठीक है, कौन कौन से हैं? जेंडर, हेरिडिटी, रेस, एज। ठीक है, एवरी ईयर 50,000 मोर वुमेन डाई बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज कंपेयर टू मैन इन यूएस, और इंडिया में इट में भी मच मच वर्स। ठीक है, तो वुमेन में क्या होता है कि यंग एज में डिफरेंट हार्ट डिजीज होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है यंग फीमेल्स को, उसमें वाल्व लीक हो जाते हैं, चेंज करने पड़ते हैं कई बार। जॉइंट्स में आर्थराइटिस होता है, वाल्व लीक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रेगनेंसी में वुमेन को क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? एनीबडी कैन टेल मी? हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है हार्ट डिजीज। हाँ, व्हाट्स योर नेम? तुषिता। तो एवरीबडी क्लैप। एक तो प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और कुछ हो सकता है प्रेगनेंसी में? हाँ जी, डायबिटीज हो सकती है। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? वुमेन में हमने ये देख लिया कि एक तो डिजीज जो है डिफरेंट एज में डिफरेंट, और पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में क्या होता है, जिनको अर्ली मीनोपॉज होता है उनका हार्ट अटैक का रिस्क 40% इंक्रीज हो जाता है। मीनोपॉज के बाद जो होता है ना, हमारे हार्मोन्स विड्रॉ हो जाते हैं बॉडी में से, तो उसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का रिस्क जो होता है ना, डे बाय डे बढ़ता जाता है। सो वुमेन हैव डिफरेंट रिस्क एट डिफरेंट एजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो वुमेन है उनमें डिजीज मिस होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनको टिपिकल सिम्टम नहीं होते। तो अभी आपके क्या हो गए? डाइट, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सब कौन से हैं? दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंगर, स्लीप, रिलेशनशिप्स, एडिक्शंस, ये सब रिसेंटली ऐड हुए हैं रिस्क फैक्टर। तो इसमें जो है अगर किसी को एक रिस्क फैक्टर है तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा, 2 है तो और बढ़ जाएगा, 3 है और बढ़ जाएगा। तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर, इट विल इंक्रीज एज मेनी टाइम्स योर रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड आइडेंटिफाई अवर रिस्क फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। एवरीबडी शुड आइडेंटिफाई। अगर अभी पता चल जाएगा, वी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग द हार्ट डिजीज। कौन सी एज से हमको केयर करना शुरू करना है? टीनेज में ही हमारे सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी एक्वायर होते हैं। जितने भी बैड हैबिट्स हैं वी एक्वायर इन टीनेज। तो उसके बाद फिर अब आपको ये दिखा रहे हैं एक साइकिल। ये क्या है? जैसे हम अपनी लाइफ में फ्रॉम बर्थ टिल यू रीच आवर डेस्टिनेशन, एट एवरी स्टेज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, सबको मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करना है टू
to prevent heart disease and to treat it. तो when everybody comes together we call it a integrated approach. और सबसे पहले जो होता है before we get the risk factors it is the primordial prevention. उसके बाद primary prevention होता है जब we already have risk factors उसको हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे. ठीक है, अगर हमारे को पता लग जाए हम रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं. सिंपल हम वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं. अगर फिर भी एक स्टेज क्रॉस हो जाती है फिर अर्ली डायग्नोसिस. अर्ली डायग्नोसिस में क्या करना है कि आपको पता लग गया कि अब बीमारी होने के चांसेस हैं. वी ट्रीट इट बाय सिंपल मेथड्स विदाउट मेडिसिन. उसके बाद देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज जिसमें कि मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है. एंड उसके बाद अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, देन वी नीड टू डू सम इंटरवेंशन कि वो एंजियोग्राफी करनी पड़ गई, बाईपास करना पड़ गया, स्टेंट डालना पड़ गया. उसके बाद वी नीड रिहेबिलिटेशन कि उसको वापस that person has to go back to their original work and live a healthy normal life. And then again we have to start prevention throughout life. ठीक है, this will help in increasing our health span also and life span also. क्योंकि health span होता है जब जितने टाइम तक हम healthy रहते हैं, लाइफ स्पैन होता है जितने टाइम हम जिंदा रहते हैं. कई लोग जो होते हैं उनको 40 साल में हार्ट अटैक आ गया, 60 साल में उनको स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गए, फिर बेड पे बैठे हैं या व्हील चेयर पे चल रहे हैं. दैट इज़ नॉट अ हेल्दी लाइफ स्पैन. ठीक है, वो हेल्थ स्पैन कम हो गया आपका. और लाइफ स्पैन होता है कि जब तक आप जिंदा हो. ठीक है, तो आप एंड तक लास्ट डे तक अगर एक्टिव रहोगे देन यू हैव अ हेल्दी लाइफ स्पैन एंड अ हेल्दी हेल्थ स्पैन. नाउ वी कम टू ओबेसिटी. ओबेसिटी किसको पता है कि ओबेसिटी क्या होता है? फटाफट से बता दो. सर मोटापा. तो कैसे पता चलेगा है कि सर ड्यू टू वेट, ओवरवेट. हाँ, कैसे पता चलेगा कि ओवरवेट हो गया? बीइंग फैट और लेजी भी हो जाते हैं सर. हाँ. फिर नहीं, आप कैसे बता सकते हो कि हाँ भी हो गया? The person is not having control over his eating. ईटिंग. ठीक है. हाँ जी. BMI. क्या नाम है आपका? सो हाउ मच शुड बी द BMI? Sir, below 25. किसका? Sir, overall. हाँ. It's according to the height. हाँ, इट इज द वेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ योर हाइट. बट कितना होना चाहिए? BMI is more than 25 when it is overweight. ओवरवेट ये कौन सी गाइडलाइन है? इंडियन या वेस्टर्न? So different ages and different weight have different BMI. नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद एज. एनीबडी विल आंसर? Sir, हाँ. sir, Yes. 18.5 to 20. Yes, sir. ये कैसे पता चला? Sir, physical education. फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो आप? क्लास 2 में. ठीक है, वेरी गुड. क्या नाम है आपका? मनमीत. एवरीबडी क्लास फॉर हर. सो आई वांट टू एम्फसाइज कि इंडियन गाइडलाइन दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न गाइडलाइन. जो इंडियन है उसमें 25 से अबव ओबेसिटी होता है. वेस्टर्न में 25 से लेके 30 तक ओवरवेट है. ठीक है, और 30 से ऊपर ओबेसिटी. बट दैट इज फॉर वेस्टर्न. लेकिन इंडियंस बिकॉज दे हैव हायर रिस्क, इंडियंस एंड एशियंस के लिए डिफरेंट गाइडलाइन है. सो फ्रॉम 18 to 22 इट इज normal, 22 to 25 it is overweight, and above 25 it is obesity. So how many of you know your own BMI? Hanji. It's 20. 20. So it falls in normal or Normal. normal? Good. Everybody clap करो इनको. क्या नाम है? कांक्षा. ठीक है, चॉकलेट मिल रही है ना सबको. सो अगर आपको अपना BMI पता है तो आपको ये पता है कि मुझे ओबेसिटी है या नहीं है. ठीक है, तो ओबेसिटी जो है इट हैज बिकम द नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, एंड इन US इट इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, तो ओबेसिटी 2 तरह की होती है. अब कैन समबडी टेल मी कि कौन कौन सी तरह की होती है ओबेसिटी? A pear-shaped and apple-shaped. हाँ, क्या डिफरेंस है? Pear-shaped is when our hips and thighs are obese, and apple-shaped is from apple. ओके, वेरी गुड. क्या नाम है?
आप भी फिजिकल एजुकेशन से हैं? साइंस, वेरी गुड। कहाँ पढ़ा था ये? स्लाइड में। एवरीबडी डबल क्लैप करो। तो इनमें से कौन सा ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है? एप्पल शेप। क्या नाम है आपका? हाँ, सुप्रिया। सो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी इज मोर डेंजरस। इंडियंस में कौन सा कॉमन होता है? एप्पल शेप। हमारे थिन होते हैं लेकिन हमारे पेट बाहर होते हैं, ठीक है। तो अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस कितने लोगों को पता है? सो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना होना चाहिए वेस्ट? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो, ठीक है। आजकल टीवी के सामने बैठते हैं, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है या बियर होती है और दूसरे हाथ में चिप्स होते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं कई लोग। तो क्या बन जाते हैं वो? काउच पोटैटो। तो अब ये बताओ कि अभी आपके मैडम बता रहे थे कि मिलेट्स के बारे में भी इन्होंने बहुत काम किया था। तो वी ऑल्सो हैड अ वर्कशॉप और उसमें आई हैड अ टॉक ऑन मिलेट्स। तो मिलेट्स, हाउ मेनी पीपल दे आर टेकिंग मिलेट्स? सिर्फ इतने लोग? 2। सो मिलेट्स इज वेरी गुड। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन ज़्यादा होते हैं और उसमें कैलोरीज कम होती हैं और उसमें हार्ट डिजीज और बहुत सारे डिजीज होने का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि वेस्ट कैसे, वेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? हाइट पे कैसे, मतलब कितना होना चाहिए हाइट का? हाफ। कौन बोला हाफ? यस, व्हाट्स योर नेम? विश्का। एवरीबॉडी क्लैप फॉर हर। आपका हाफ से कम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्स योर हाइट? 5'5". कितने इंचेस हो गए? 65। तो वेस्ट कितना है? 30। तो कितना होना चाहिए आपका 65 के लिए? हाफ मीन्स 32.5। तो 32 ठीक है, 30 अगर तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो एवरीबॉडी कैलकुलेट योर वेस्ट एंड हाइट रेशियो। अगर आपका हाफ से कम है तो यू आर नॉट हैविंग ओबेसिटी। अगर किसी का ज्यादा है तो कोई बात नहीं डरने की। आज की टॉक में हम आपको ये भी बता देंगे कि ओबेसिटी से कैसे डील करना है विदाउट ऑल दोस फैंसी डाइट्स। इसके लिए आप यू स्पेंड सो मच मनी एंड आज द डाइटिशियन वो बोलेगी ये खाओ वो खाओ वो खाओ, विच यू कैन नेवर प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ वीक या 10 days, है ना। सो देयर आर अदर सिंपल मेथड्स जिससे कि यू कैन अचीव इट।